हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। न्यू अपडेट के साथ आपके सामने आया हूं मैं। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो यूके की कल न्यू अपडेट्स अनाउंस हुई हैं उसमें कुछ अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये है कि चलते हैं वीडियो की तरफ। उसमें डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या चेंजेस आई हैं और कौन कौन सी चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि अभी फ़िलहाल जो है स्टूडेंट के डिपेंडेंट को ख़त्म किया है, लेकिन आने वाले अरसे में जो नर्सेज हैं या केयरर हैं उनके डिपेंडेंट को भी ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए जिन्होंने डिपेंडेंट नहीं बुलाए वो अपने डिपेंडेंट जल्दी से जल्दी बुलाएं, और जो यूके का प्रोसेस करना चाह रहे हैं अगर वो आ रहे हैं यूके तो अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आएँ। उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि यूके का प्रोसेस दिन ब दिन जो है वो सख्त से सख्त होता जाएगा, और ये कि वो प्रोसेस हार्ड करते जाएंगे ओवरसीज के लिए। और उसकी कुछ झलक जो है हमने कल के जो होम सेक्रेटरी के जो 5 पॉइंट्स थे उसमें हमने देखी है। आप ये होम सेक्रेटरी की स्पीच देखें, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। The first of our 5 points will be to end the abuse of the health and care visa. We will stop overseas care workers from bringing family dependents, and we will require care firms in England to be regulated by the Care Quality Commission in order for them to sponsor visas. Approximately 120,000 dependents accompanied 100,000 care workers and senior care workers in the year ending September 2023. Only 25% of dependents are estimated to be in work, meaning a significant number are drawing on public services rather than helping to grow the economy. We recognise that foreign workers do great work in our NHS and health sector, but it is also important that migrants make a big enough financial contribution. Therefore, we will increase annual immigration health surcharge this year by 66%, from £624 to £1,035, to raise on average around £1.3 billion for the health services of this country every year. Second, we will stop immigration undercutting the salary of British workers. We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring, in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. Those coming on health and social care visa routes will be exempt, so we can continue to bring in the healthcare workers on which our care sector and NHS rely. Thirdly, we will scrap cut-price shortage labour from overseas by ending the 20% going rate salary discount for shortage occupations and reforming the shortage occupation list. I have asked the Migration Advisory Committee to review the occupations on this list because of our new higher skilled worker salary thresholds. And we will create a new immigration salary list with a reduced number of occupations. People only bring dependents who they can support financially. By raising the minimum income for family visas to the same threshold as the minimum salary threshold for skills workers, which is 38,700. The minimum income requirement of 18,600 has not been increased since 2012. Madam Deputy Speaker, this package of measures will take place from next spring. Finally, having already banned overseas master's students from bringing family members to the UK, I have asked the Migration Advisory Committee to review the graduate route to prevent abuse, to protect the integrity and quality of the UK's outstanding higher education. ये आपने होम सेक्रेटरी की स्पीच सुनी, उसमें जो है उन्होंने जिक्र किया कि जो केयरर हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं और उनके डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आए हैं। इसलिए जो है उन्होंने कुछ मेजर्स जो है 5 मेजर्स लिए हैं कम करने के लिए, इमिग्रेशन को कम करने के लिए, और जो इमिग्रेंट आते हैं उनके डिपेंडेंट को कम करने के लिए ये जो 5 मेजर्स हैं वो लिए हैं। उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेजर जो ये लिया है कि सैलरी का एक थ्रेशोल्ड होता है। यूके में आने के लिए आपको एक मिनिमम सैलरी चाहिए होती है डिपेंडेंट को मेंटेन रखने के लिए। वो जो मिनिमम सैलरी थी वो पहले केयरर के लिए जो है 26,400 थी ईयरली, उसको बढ़ा के उन्होंने 38,700 कर दी है। और जो मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड ये उन्होंने रखा है 38,700, तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। नर्सेस की सैलरी बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया है। जो रेजिडेंट हैं यहाँ के इंग्लैंड के और जो सिटीजन हैं रेजिडेंट हैं सब,
अगर वो अपने डिपेंडेंट को अभी बुलाना चाहते हैं तो उनको मिनिमम जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है 38,700 ये शो करना पड़ेगा। उसके बाद उनके डिपेंडेंट उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एचएस में जो बैंड 7 की सैलरी है, इतनी सैलरी होगी आपकी तो आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, वरना आप अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। अगर जो रूल रेगुलेशन देखे जाए, उन रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक 3 लाख लोग आ सकते हैं यूके, लेकिन यह है कि ये इम्प्लीमेंट होने के बाद 3 लाख लोग नहीं आ सकेंगे। ये यूके गवर्नमेंट का एस्टीमेट। बाद जो दूसरा मेजर लिया है उन्होंने, शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट एक होती थी कि जो ऑक्यूपेशन जो है यूके में शॉर्ट है, उनकी शॉर्टेज है, वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाले हुए थे और उसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड का रूल लागू नहीं होता था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अभी जो है शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट ख़त्म हो गई है। अभी जो है एक नई एडवाइजरी कमेटी बनी है, जो तीसरा स्टेप है। नई एडवाइजरी कमेटी बनी है जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी कहलाती है। जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है वो मॉनिटर करेगी सबको, मतलब आपके 2 चेक हो गए, एक होम ऑफिस आपको चेक करेगा और एक जो है एडवाइजरी कमेटी जो है वो आपको चेक करेगी। तो ये 2 चेक हो गए। अब 2 चेक होने के बाद जो है वो एडवाइजरी कमेटी जिसको कहेगी वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाले जाएंगे नाम, और जिनको एडवाइजरी कमेटी कहेगी कि ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन में नहीं है वो ऑक्यूपेशन में नहीं आएंगे। अब मिसाल के तौर पे अभी फिलहाल नर्सेज और सीनियर केयरर, डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट और जितने भी ये लोग हैं ये सब शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। लेकिन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट खत्म होने से अब ये जो है नॉर्मल टायर 2 वीजा में आ गए हैं। अभी उसके बाद जो नई जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके बाद एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी कि किसको डालना है ऑक्यूपेशन लिस्ट पे और किसको नहीं डालना है। जो है अगर जो सैलरी थ्रेशोल्ड है 38,700 वो उन लोगों के लिए नहीं है। वैसे यूजुअली ये होता है कि जो भी नई चेंजेस आती हैं वो नए आने वालों के लिए होती हैं, लेकिन इस दफा जो ये चेंज आया है ये नए आने वालों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सिटीजन हैं, रेजिडेंट हैं, जो भी हैं, अगर वो अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, माँ बाप को, या फिर ये है कि अपने बीवी बच्चों को या किसी को भी बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनका मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड 38,700 होना चाहिए। जो उसके बाद आखिरी चेंजेस की गई है वो ये है कि इमिग्रेशन जो फी है NHS की इमिग्रेशन फी वो बढ़ा दी गई है, जिसको एनुअल इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज कहते हैं, वो बढ़ा दी गई है। पहले जो फीस थी वो 624 थी, उसको बढ़ा के 1035 कर दिया गया है। और हर साल जो है मतलब ये हर साल की आपको फीस पे करनी है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फीस जो आपको पे करनी होगी 3 साल के वीजे के लिए वो अराउंड 3,400 इतनी बन रही है। और अगर आपका 5 साल का वीजा है तो वही 5,000 से अबव जो है वो सिर्फ जो है आपके हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपकी फीस आ रही है। वीजा टाइपिंग फीस वो अलग है, वो जो है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वो इन्होंने वीजा फीस भी बढ़ाई है, सारी फीसें बढ़ाई हैं। तो टोटल मिला के आपका 3,500 से 4,000 मतलब आपका खर्चा आएगा अगर आपने 3 साल का वीजा जो है वो अप्लाई किया है। अगर 5 साल का किया है तो तकरीबन 6 तक जो है वो इतना खर्चा आएगा। फिर उसके बाद जो कहा है उन्होंने कि नर्सेज और केयरर और डॉक्टर जो NHS में काम करते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं है अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन यह है कि आने वाले दिनों का कुछ पता नहीं है। लेकिन जो अभी आ रहे हैं यूके में NHS में आ रहे हैं नर्सेज या केयरर या डॉक्टर्स जो भी आ रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आएं अगर आप वो लेके आना चाह रहे हैं। अगर नहीं लेके आना चाह रहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन यह है कि अगर जो लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं NHS में काम कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपने डिपेंडेंट को बुला लें, इससे पहले कि रूल चेंज हो जाए। लेकिन ये कि इस तरफ जा रहे हैं यूके वाले कि रूल ये हो सकता है कि कुछ अरसे बाद NHS में जो काम कर रहे हैं लोग उनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट हो। वैसे यूके गवर्नमेंट का ये है कि बहुत जल्दी जो है क्लैप से स्लैब पे आ गए, और स्लैब भी जो है वो चीक पे नहीं है। थोड़ा अरसा पहले जो है कोविड की वजह से जो है ना सब जो है हम लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, हम हीरो थे, ओवरसीज नर्सेज वाले जो है मतलब बहुत ज्यादा काम कर रहे थे और सब अप्रिशिएट कर रहे थे। अभी 2 साल 3 साल भी नहीं हुए और जो है इस तरह की रूल्स रेगुलेशन आना शुरू हो गए हैं, और इससे यही लग रहा है कि इमिग्रेशन जो है बहुत कम होने जा रही है।
ऑलरेडी जो है इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, लेकिन ये है कि इमिग्रेशन को ये कम करना चाह रहे हैं। आखिर में फिर मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो सोच रहे हैं कि यूके आना चाह रहे हैं, यूके का प्लान करना चाह रहे हैं, ओईटी देना चाह रहे हैं, उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डेट बुक नहीं की तो आप डेट बुक करें, एग्ज़ाम दें, और अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ें और यूके आए अगर आपने यूके आना है तो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं।